और जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाई डू वी हेट वन अनदर? आई थिंक ही मींस इंडिया पाकिस्तान. खैर, होप Assalamualaikum Junaid bhai, hope you're happy and healthy. I'm from a middle class family in Lahore. I'm the only child and I help my father in his business. Inshallah, life is good. Alhamdulillah. Recently, we saved up a lot of money to purchase a Suzuki Swift. My father drove a 12-year-old car, and it was after a lot of savings and hard work that we purchased a car worth 4.5 million rupees. Junaid bhai, it has been only the third day to our new car, and it has already been keyed. मतलब चाबी मार दी किसी ने. Why do we seem to have deep-rooted hatred for one another? अच्छा, वो hatred वो नहीं था, इंडिया पाकिस्तान नहीं था. It was not even done in my neighborhood. I was visiting a client. Absolute no contact of mine lives or knows me in that area. Still, someone had enough hatred for owner of a newly purchased red car to just key it for no reason. मैंने अभी तक प्लास्टिक भी नहीं निकाली थी सीट्स की, and someone has already made a dent. I don't have that much knowledge of cars since we got our old car repaired for literally anything, but my friends tell me it's a 10,000 ka kharcha. My question is, why do we hate one another? I keep seeing this more and more. Aged uncles in mosques scolding people quite harshly for whatever reason. Shopkeepers treating customers like their sworn enemy. People trolling each other over the tiniest difference in opinion on social media, treating animals poorly, misbehaving in foreign countries. This isn't about class or gender. We are just hateful for no reason. Why can't Pakistanis used to love? Is this quality, when magnified, is the reason we have an undeclared war on all our fronts? Is it merely a result of deteriorating financial situation of the country as a whole, or is there more to it? Is it because of the way we were created, or because our calm being at war for centuries now? I would love to hear your thoughts, even though at this point I believe even if your show is shown on TV, things won't improve on societal level. Regards. Okay, it's like a multi-layered question. First of all, आपने लिखा ना, इज इट बिकॉज आर कॉम बीइंग एट वॉर फॉर सेंचुरीज? वी आर नॉट इन अ वॉर. हमने कभी वॉर लड़ी ही नहीं है. हमने अगर वॉर लड़ी होती तो हम बहुत कुछ सीख चुके होते. कल मैं किसकी एक देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग अ रील. उसमें वो पोलैंड और जर्मनी, लाइक बंदा यहाँ से छलांग मार रहे, जर्मनी यहाँ से छलांग मार रहे, पोलैंड, एंड दीज कंट्रीज, like Poland was invaded by Germany not so long ago. Like my father was alive when this happened, and my father, mashallah, is still alive, right? तो ये कंट्रीज जब वॉर में गए, इन्होंने जब लाशों के पलंदे देखे पूरे शहर में, गिद्ध जो है ना, वल्चर्स हवाओं में उड़ रहे होते थे और बच्चों को नोच रहे होते थे, बिकॉज देयर वाज नो वन. दे रियलाइज के हमने ऐसा अब नहीं करना. अभी रिसेंटली सेलिब्रेशन हुई है 120 years ऑफ नो वॉर बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड. दे वर आर्च राइवल्स. आप देखें, अगर आपने नेपोलियन देखी है तो उसमें भी देखें ये लोग कितना लड़ते थे आपस में. लेकिन अब आप गाड़ी लेके समंदर के नीचे से फ्रांस में घुस जाते हैं, आधे घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं. यहाँ पता नहीं कितना टाइम लगता है. तो इन्होंने सीख लिया कि लड़ने मरने में कोई फायदा नहीं है, फायदा सिर्फ बिजनेस में, और बिजनेस साथ मिलके करता है, होता है, और ट्रस्ट पे होता है. तो ट्रस्ट लेवल गेन किया. आज ट्रस्ट का ये आलम है कि आप वीज़ा लेके पोर्चुगल से एंटर हो, विच इज़ लाइक द फर्देस्ट, लाइक वेस्ट वेस्ट या ग्रीस से, और फिर आप निकलते हो बिल्कुल फर्दर ईस्ट से, और एंड देयर इज नो क्वेश्चन. आप 22 मुल्क के अंदर ट्रेन में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. सोचो कितना लेवल ऑफ ट्रस्ट होगा, कितना भरोसा होगा एक दूसरे की इंटेल पे, कि कोई कारस्तानी ना हो कि जी इटली ने गलत बंदे को वीज़ा दे दिया जिसकी वजह से स्विट्ज़रलैंड में धमाका हो गया, या फलाने की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है. सो दे अंडरस्टूड, दे लर्न, एंड विच इज़ वाई दे प्रोग्रेसिंग. तो हमने तो कभी वॉर की नहीं है भाई. हमने सिर्फ बॉर्डर पे लड़ा है. शहरों में बमबारी कभी नहीं हुई. इस वक्त जहां मैं बैठा हूं, मेरी गली के बिल्कुल कोने पे जो ट्रेन स्टेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर लोग मैप खोल के बैठ जाएंगे, अच्छा यहाँ रहता है, फिर वो जाएंगे कि फलानी वेबसाइट पे कि प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, अच्छा इतने नोट कमा रहा है. भाई मैं रेंट पे रहते हैं हम यहाँ. तो ये जो बिल्कुल मेरा कॉर्नर पे जो अंडरग्राउंड है, दिस यूज टू बी यूज एज अ शेल्टर इन वर्ल्ड वॉर 2, और अंदर लिखा हुआ भी है, वो छोटे से एक म्यूजियम टाइप का भी उन्होंने बनाया हुआ है, राइट? तो यहाँ तो शहरों पे बमबारी होती थी तो लोग शेल्टर लेते थे. हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है भाई. एयर रेड पता नहीं अगर 65 में अगर हुई थी तो हुई थी, वो भी माय फादर टेल्स मी कि वो माड़ीपुर बेस जो है कराची में, तो वो हमारे घर से नजर आता था, क्योंकि बिल्डिंग्स तो थी नहीं. तो रात के टाइम नजर आता था कि बहुत सारे टैंक सर्कल में होते थे और हवा में बस अंधेरे में मारते थे, होपिंग कि किसी जहाज पे लग जाए. दैट्स ऑल द एक्शन ही हैज सीन. तो हम हमारी तो कभी लड़ाई नहीं. खैर, बात आपकी शुरू हुई थी कि 45 लाख की स्विफ्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ इंडियंस हु आर लिसनिंग वुड बी थिंकिंग कि 45 लाख में बंदा कनाडा माइग्रेट हो जाते हैं, यार लोग स्विफ्ट खरीदे, और स्विफ्ट इज लाइक अ डब्बा कार. फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान में मोनोपोली है बिग थ्री की, विच इज सुजुकी, होंडा एंड टोयोटा.
और जो किसी नए प्लेयर को आने भी नहीं देते और किसी को टिकने नहीं देते। और गाड़ियों की जो क्वालिटी है वो ऐसी है कि आपने इतनी वीडियोस देखी होंगी कि वो बिल्कुल डब्बा होती हैं और उसमें फीचर्स नहीं होते। वही वही वेरिएंट जो है जब दूसरे मुल्क में होता है उसमें आपको 12-12 एयर बैग्स मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान वाली में आपको सिर्फ 2 एयर बैग। वो भी शुक्र है अब एयर बैग आना शुरू है, वरना देयर वाज अ टाइम के वो क्या मेहरान में पावर विंडोज नहीं होती थी। तो खैर बड़े मसले मसाइल हैं बिकॉज क्वालिटी चेक्स नहीं है और किसी ने कोई फाइन भी नहीं करना इन कंपनीज को। सो दे प्रोड्यूस 3 डब्बा वर्थ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस। मेरी गाड़ी जो जब मैंने खरीदी थी वो 6 साल पुरानी थी एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 3.3 मिलियन और अब 6 साल उसको मैंने यूज़ किया है, लाख किलोमीटर से ऊपर है। इट्स नाउ वर्थ क्लोज टू 4 मिलियन। लाइक ज़्यादा ही हो गए पैसे। वो ठीक है इन्फ्लेशन टर्म्स में शायद मैं वहीं खड़ा हूँ या उससे भी नीचे हूँ। ये एक अजीब पाकिस्तान में साइकी गाड़ियाँ कभी भी, इवन इन अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आप गाड़ी खरीद तो गाड़ी डीवैल्यू होती है। पाकिस्तान में उल्टा ही है क्योंकि गाड़ी पे ही चल रहा है मुल्क, गाड़ियों पे और प्लॉट पे, बस इसी पे ही सारा पैसा रोल हो रहा है। इसी वजह से वो उसकी एक हाइपर इन्फ्लेशन हुई हुई है। खैर, तो गाड़ियाँ ऐसी मिलती हैं 45 लाख की स्विफ्ट विच इज़ लाइक प्रॉपर सेडान भी नहीं है। माई ओन कार, उसका नया मॉडल 1 करोड़ का। मैं 1 करोड़ क्यों स्पेंड करूं एक नई गाड़ी पे? 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है यार। तो दिस इज नो पॉइंट। ऑब्वियसली वो बंदे का दिल करता है अपग्रेड करे, लाइक आई वांट गेट इनटू एन एसयूवी, बट मैं 1.5-2 करोड़ एक गाड़ी के लिए, जो कि कल को कोई जैसे आपकी चाबी मार के चला गया, गधा गाड़ी घुस गई, वो तो बेचारा सब बोलेगा सर गरीब आदमी हूँ, गधा आउट ऑफ कंट्रोल। ये मेरे से दोस्त के साथ हुआ था, उसने शरेड ली थी, पाकिस्तान में इसको शराड बोलते हैं बट द वर्ड इज शरेड, इट मीन्स स्टाइल। वो जा रहा था और एक गधा गधा गाड़ी, डोंकी कार्ट विच वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, वो घुस गया। गधे के दोनों घुटने दरवाजे पे लगे ड्राइविंग साइड पे और गधे की जबान जो है स्टीयरिंग पे यूं यूं हो रही थी। अब उसने बोला साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, गधा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैं क्या करूँ? अब उसकी गाड़ी डेंट। नई गाड़ी थी, खैर नई तो नहीं आती थी शरेड, मगर ये कि उसने तो नई ली थी। बस यही है। मैंने जो पहली गाड़ी ली थी कराची में, मीरा, पहले दिन द वेरी फर्स्ट डे 3 ये बाइकर थे, ये शपाटर बॉयज, घुस गए पीछे से, बम्पर लटक गया। अब वो कह रहे हैं हम गरीब हैं, हम तो साइट एरिया में रहते हैं, क्या करोगे अब आप? ये मसले तो हैं। अब ये जो किंग की आपने बात की ना, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। हम लोग, ये जो आपने बहुत सारे लेयर्स वाले सवाल किए ना कि हमारे लोग इस तरह क्यों हैं, हमें ना, मैं इस पर बड़े अरसे से सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक पाकिस्तान में प्रॉब्लम जो है वो करप्शन की है या फौज की इंटरफेरेंस है या फिर महंगाई है या दहशतगर्दी है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये सब तो है ही हैं, मगर जो कोर प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान का, वो है लैक ऑफ एम्पैथी। जब आप में एम्पैथी नहीं होती ना, तो फिर आपको जहां थोड़ी सी पावर मिलती है आप दूसरे को रगड़ते हो और आपको मजा आता है। हम लोग सैडिस्ट हैं अपनी नेचर में, हमें मजा आता है लोगों को तंग करने में, लोगों को शर पसंदी एक वर्ड है ना, शर फैलाना। तो आप कभी भी देखो, आप एक खूबसूरत सा पॉट लगाओ अपने घर के बाहर, प्लांट लगाओ, उसके फूल गायब हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, कीड़े वीड़े नहीं खाएंगे, लोग तोड़ लेंगे। लोगों की ना, अब मैं क्या बोलूं, बहुत सारे लोग ना घर में टीवी पे लगा के ये वीडियो सफाइयां कर रही होती हैं खवातीन, मतलब जो खवातीन ने मुझे बताया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गंदी गाली दूं, उनका बच्चा सामने लेगो से खेल रहा हो और वो गालियां सीख रहा हो मुझसे। बट लोगों के अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है, वो आते जाते ना उनके हाथों में हाथ हिल रहे होते हैं कि बस मैं कहीं मारूं। मैं इसके आपको मिसाल बताता हूं क्योंकि देखिए मैं गाड़ी चलाता हूं तो मुझे पता है। आप जो हैं फॉर एग्जांपल बोर्ड बेसन पे जाएं, गाड़ी पे आप वो शेड्स वेड्स लगा लें, मेक श्योर कि लोगों को समझना है कि गाड़ी के अंदर कोई है या नहीं है, और आप बस वहां बैठ के काउंट करें कि आपकी गाड़ी पे ये इस तरह करके कितने लोग जाएंगे पीछे डिग्गी पे, जान फजूल में हाथ मारेंगे उनको, या उस पे मारेंगे या आपकी छत पे हाथ मारेंगे। आते जाते लोगों की कीड़ा है कि बस मैं कुछ टच करूं किसी का, मैं कुछ, आई डोंट नो वेयर दैट कम्स फ्रॉम। ये लैक ऑफ कंट्रोल, ये हाथ पे ना, फूल होगा तोड़ देंगे, फजूल में तोड़ देंगे, कुछ चाहिए भी नहीं होगा तोड़ देंगे। तो ये लोगों के अंदर बहुत बड़ा मसला है। तो एम्पैथी नहीं है, जब एम्पैथी नहीं है तो हमें सिखाया क्या, देखें हमें तो ये दुनिया तो बेकार है, पाकिस्तानियों के लिए दुनिया बेकार है, असल दुनिया जो है वो आगे जाके तो उसकी तैयारी करनी है। तो उसकी तैयारी के लिए ये दुनिया तो अच्छी करो तो आगे अच्छा मिलेगा कुछ, इसका बेड़ा गर्क किया हुआ है, कहते ये तो बेकार है सब। तो हमें बचपन से ना एम्पैथी सिखाई, इंसानों के ही राइट्स नहीं बताए तो फूल पौधे जानवर तो बहुत दूर की बात है। अब आप इसकी सीधी सीधी मिसाल है, जिन माशरों में जानवरों के कानून हैं, उनकी इज्जत है, उनकी देखभाल है, वो माशरे आसमान को पहुंचे हुए हैं। अब उसमें अब यूरोप भी उठा लें, अमेरिका भी उठा लें, देखें अल्लाह तो हर दिल में रहता है ना, और अल्लाह की मखलूक तो सभी हैं, चरन परिंद जानवर बैक्टीरिया सभी है ना। तो बेजबान, देखो बेजबान जानवर को तंग करने का कितना गुनाह है, आपको पता ही ना, बचपन से सुना है हम लोग कितना तंग करते हैं। कुछ नहीं, बैठे होंगे कुत्ते को लात मार देंगे,
टर्की में करके दिखाएं आप ये। एक इंशाल्लाह आप टर्की जाएं, बाकू जाएं, आपके वीज़े लगें, आप वहां पे रैंडम कुत्ते को पत्थर मार के दिखाएं ना, आपको पुलिस उठा के ले गई मेरा नाम बदल दीजिएगा, या बिल्ली को लात मारें, चप्पल, जिस तरह पाकिस्तान में बच्चे नहीं फजूल में चप्पल मार दी, बिल्ली को पत्थर मार दिया फॉर नो रीजन, राइट। तो ये एम्पैथी नहीं है, बेज़बान है वो, बद्दुआ तो देता ही होगा ना, अल्लाह तो उसकी भी सुनता ही होगा ना, अल्लाह की मखलूक है भाई वो, मगर हमारे यहाँ सिखाया नहीं जाता जानवरों के क्या हुकूक हैं। अभी बकरा ईद आएगी, आप देखिएगा, मार मार के भगा रहे होंगे, बैल यहाँ से वहाँ भाग रहे, बच्चों ने अपनी, देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को समझाने वाला कौन है, कोई भी नहीं। अब वो जो बेचारा जानवर उतरता है ट्रक से, पहले ही जख्मी हो जाता है, कितनी वीडियोस आती हैं, वो बेचारा उतरने में बिकॉज वो डर जाता है, बिकॉज वो जानवर है ना। अब एक आप लेकर आए हो, कोई कैटल लेकर आए हो, ठीक है, अब वो पहले ही बच्चों का शोर है, वो घबराया हुआ है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, उसको उसकी फैमिली से निकाल लिया और वो एक ट्रक में बैठा हुआ सोराब गोट से गुलशन इकबाल आ गया, अब वहाँ बच्चों का शोर हो रहा है, वो ज़ाहिर जानवर तो बिदक जाता है ना। अब उसमें वो इतनी बार मैंने देखा है कि उनका घुटना फ्रैक्चर हो जाता है, और जब जब जानवर को चोट लग गई तो फिर उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। चलो चोट ना भी लगी, बच्चे किस तरह बकरों को मार मार के इधर से वहाँ से वहाँ भगा रहे होते हैं, दूसरी बकरी पे चढ़ा रहे होते हैं। ये लोग बड़ा फन करते हैं, चांद रात से पहले भाई यार कल तो ये मर जाएगा, चला यार इसका सेक्स कराएं, बैल को चढ़ा दिया किसी पे, ये इतना करते हैं लोग, लाइक लैक ऑफ एम्पैथी। पता ही नहीं है कि जानवर के साथ क्या हुकूक हैं, उसके साथ जानवर के सामने तो दूसरा जानवर काटना भी अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा है लाइन लगी हुई होती है, कसाई ये इसको काटा, उसको 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 उसको, एम्पैथी नहीं है। तो जानवर की हाय तो लगती होगी भाई, तो और सेम 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 दरख्तों का है, दरख्त किस तरह काटते हैं पाकिस्तान में, कोई कानून नहीं है, कानून तो खैर हर चीज़ के, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो मैं आपको जो मिसाल दी, आप कोई डाली डालें अपने घर के बाहर, कोई फूल पत्तियां लगाएं, देखें गायब होंगे, बिल्डिंग के बच्चे तोड़ देंगे, बिकॉज उनकी कीड़ा है, उनके माँ बाप ने तरबियत नहीं दी। पाकिस्तान में लोग बच्चे सिर्फ पैदा इसलिए करते हैं सास का मुंह बंद हो जाए, शौर छोड़ के ना भागे, और कोई वजह नहीं होती, ना उनको पालने का तमीज़ होती है, ना वो सही से पालते हैं। वो कहते हैं जिस तरह रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, ये मेरे 4 बच्चे हैं, ये मैं रेस्टोरेंट आया हूं खाना बीवी के साथ, माँ बाप दोनों की सोची होती है, अब ये सबकी जिम्मेदारी, भाड़ में जाए, हम अपना नान गोश्त खाएंगे और ये बच्चे यहां से यहां भागेंगे, शोर करेंगे, दूसरों का एक्सपीरियंस खराब करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए तो पैदा ही नहीं किए थे ना, पैदा किए थे खानदान वालों का मुंह चुप कराने के लिए कि इसकी बच्चादानी है नहीं है, मतलब वट एवर रीजन, जो जहालत हमारे यहाँ है, 4 बच्चे पैदा कर दो, बेटे के चक्कर में 8 बेटियों की लाइन लगा दी, अब वो पैदा करके दुनिया पे छोड़ दिया। अब ये दुनिया का मसला है, हमने तो संभालना नहीं, हमें बस सिर्फ 2 रोटी खिलानी है, 2 रोटी तो कुत्ता भी खिला देता है। अरे परवरिश करो उनकी, उनको तरबियत दो, लेकिन तरबियत तो है ही नहीं, देखें जो हाल है हमारे मुल्क का। सो एम्पैथी ये घर से आती है, घर नहीं सिखा सकता तो मस्जिद में ही सिखा दें, मतलब बहुत सारे जहाँ जहाँ तदरीसी अमल हो रहा है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्यूशन हो, मगर नहीं, बर रेस लगी हुई है कि बाद नंबर इतने आ जाएं, नंबर सबके पास है। अभी एक खातून का मुझे ऐसे जाहिल तरीन मैसेज आया, और जब मैंने उनका बायो देखा, क्या उनकी डिग्री, और यूरोप के जिस मुल्क में वो रहती हैं 20 मुल्क फिर भी चुकी हैं क्योंकि झंडे लगे हुए थे, मगर इतनी जाहिल उन्होंने बात की, मैं क्या रिपीट करूं, खून जलाने वाली बात है। तो मुझे तो अफसोस होता है हमारे मुल्क का जब पढ़ा लिखा, जिसको एक्सपोजर है, उसकी सोच इतनी घटिया है, तो जो कभी गया ही नहीं है मुरीदके से बाहर, वो उसकी क्या ही सोच होगी। तो ये सोशल मीडिया ना एक ब्लेसिंग भी है, अगर हमें इतनी जहालत नजर आती है, ये हमें पता चलता है कि यार ये है हमारा असल मुल्क। अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं यार वो बच्चे जो हैं वीडियोस आ रही हैं, वो एक दूसरे की ले रहे होते हैं, टेकिंग कर रहे होते हैं, ये गलत चीज़ प्रोमोट हो रही है। अबे बच्चे हैं ही ऐसे पाकिस्तान के, आपने पता नहीं क्या समझा हुआ कि आसमान से उतरे फरिश्ते हैं और घर में बैठ के सारा दिन नौरानी कायदा पढ़ रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं, बच्चे ऐसे ही हैं, गलीज गालियां देते हैं। आप कभी बैठे तो सही चाय के होटल पे, आप किसी चाय के होटल पे बैठे, खारदर में बैठे, डिफेंस में कहीं बैठे, जौहर में कहीं बैठे, आपको हर वक्त गलीज गालियों की, मैं नहीं कह रहा कि मैं गालियां नहीं देता, मगर बंदा देखता है यार आगे पीछे कोई फैमिली तो नहीं है, लोग तो नहीं बैठे हुए, जोर जोर से गंदी गंदी गलीज माँ बहन की गालियां, घर में ही सीखा है। सो यार ये चीजें घर से आती हैं भाई। तो आपकी जो गाड़ी को चाबी मार गया तो ये कीड़ा होता है, या नई गाड़ी चाबी मार दो फॉर नो रीजन। जैसा कि आपने बोला कि आप उस एक गैर इलाके में थे, वहां पे आपका कोई जानने वाला भी नहीं था, और जरूरी नहीं रिश्तेदार, लोगों में वैसी बड़ी सड़न है। यही वजह है कि हमारे यहाँ नजर की बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, रेहाना को नजर क्यों नहीं लगती? फेंटी ब्यूटी $1 बिलियन से ऊपर वैल्यूएशन हो गई, ड्रेक की इतनी बड़ी चेनें पहनता है, उसको नजर क्यों नहीं लगती? लाना डेल रे को क्यों नहीं लगती? टेलर स्विफ्ट ने अभी $2 बिलियन का टूर किया है, उसको नजर क्यों नहीं लगती? वो क्यों नहीं बीमार होती? उसको एनोरेक्सिया क्यों नहीं होता? उल्टियां खून की क्यों नहीं करती? कानिये वेस्ट को क्यों नहीं? किम कार्डेशियन को क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके कमेंट सेक्शन में कभी भी नहीं होता बड़ा नोट छाप रही हो, बड़ा नोट छाप रही हो। यहाँ आप किसी भी इन्फ्लुएंसर के चले जाएं इंस्टाग्राम पे, कोई किसी ने यूरोप का ट्रिप किया हो, अमेरिका गया हो, कहीं कोई स्काई डाइविंग कर रहा है या बुर्ज अल अरब में, बड़ा नोट आ रहा है, बड़ा, अबे तो मेहनत कर रहे हैं तो आ रहा है ना,
ये भी रात के क्या टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, मैं रात के 10 बजे बैठ के बक कर रहा हूँ ना, जाके बैठ सकता हूँ ना आराम से, फुटबॉल का मैच आ रहा है, सारे बच्चे वहां बैठ के देख रहे हैं, मैं भी देख लूँ, काम कर रहा हूँ ना, मेहनत करते हैं तो पैसे आते हैं, बस ये कमेंट बाजी। खैर, तो जेलसी, हसद बहुत है। सूरह फलक तो आई ही पाकिस्तानियों के लिए थी, मैं तो कहता यही हूँ। ट्रक वाले के ऊपर, रेड़ी के ऊपर, गधा गाड़ी पे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, यानी उससे भी लोग जलते हैं, उसको भी नजर की टेंशन है। तो ये हसद हमारे अंदर बहुत है, विच इज वाई किसी की कोई अच्छी चीज है चाबी मार दो, किसी का ये कर दो। खैर, सो ये जो हेट है, वाई डू वी हेट ईच अदर, और ये आता ही अंदर से और अपनी इनसिक्योरिटी से आता है, क्योंकि पल्ले कुछ है नहीं। देखिए, काम वाम करके पैसे तो लोग बना ही लेते हैं, बट वही वाली बात है ना, अगर आप 4 किताबें नहीं पढ़ी तो आपके पास गाड़ी और बंगला दिखाने के अलावा आपके पास कुछ होता नहीं है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे जो अमीर लोग हैं, जो रियल एस्टेट से अमीर हो गए, रातों रात अरबोपति बन गए, तो इतने बड़ा बड़ा एलवी और बालमैन यूं यूं लिखा हुआ है पूरे ब्रांड्स में, जो इतने भर गए हैं, तो अब जाहिर है पैसा तो आ गया, लेकिन तमीज तो नहीं आई। मनी डजंट ब्रिंग क्लास ना। तो एक पाकिस्तान का ना ये मसला ये भी है, बहुत सारा पैसा बहुत सारे गलत लोगों के पास आ गया, और वो गलत लोग जो हैं फिर टिकटॉक पे जो हरकतें कर रहे हैं, 8-8 V8 पीछे आ रहे हैं, 600 गार्ड पीछे ऐसे यूं खड़े में, तो लोग उससे एस्पायर हो रहे हैं, यार मैंने भी ये बनना है। अब वो किस तरह बना है, वो तो जी प्लॉटों पे कब्जा कर करके और बदमाशी से बना है, तो यार मैंने भी बाय हुक और बाय क्रुक यही करना है। लोग यही कर रहे हैं। हमारे यहाँ अच्छी इंस्पिरेशन नहीं है, हमारे यहाँ 12th फेल वाली फिल्में नहीं बनती। अभी वो फिल्म आ रही है राजकुमार राव की, श्रीकांत, तो उसका ट्रेलर मैंने शेयर किया, मुझे पता ही नहीं था भाई, उनके डायरेक्टर साहब सुमित जो हैं वो मुझे फॉलो करते हैं, तो उन्होंने डीएम किया, मैं बोला अच्छा यार, ये आपने सेक्रेड गेम्स उन्होंने बनाया, क्या बात है यार, गंजी स्वैग की, जबरदस्त। तो खैर, वी एक्सचेंज्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस। सो पॉइंट बीइंग, हमारे यहाँ इंस्पिरेशन की कमी है। मैं एक फिल्म का प्रोडक्ट हूँ, उसका नाम है 12th कह रहा हूँ, अक्टूबर स्काई। कितनी वीडियोस में मैंने उसका नाम लिया है, कितने लोगों ने देखी है, मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, और एंड दैट मूवी मेड मी अलोंग अदर मूवीज एज वेल, बट मैं उसको बहुत क्रेडिट देता हूँ उस फिल्म को। तो इंस्पिरेशन चाहिए जिंदगी में। हमारा इंस्पिरेशन क्या है जी, मोटी मोटी चेन डाल के अगला जो जो फ्रॉड के केसेस में मुलविस है, वो पुलिस वाले उसको जो है ना पासिंग परेड दिखा रहे हैं। अबे क्या मुल्क है यार, व्हाट अ जोक ऑफ अ कंट्री मैन। खैर, शॉपकीपर्स ट्रीटिंग कस्टमर्स, देखिए इसमें मैं आपको अगेन, मैं कोई इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा, या जो भी है, जो फैक्ट है भाई, मैं फैक्ट की बात करता हूँ। मैं ऑब्वियसली वी ग्रू अप इन अ कंट्री जहाँ पे हमें सिखाया जाता है हिंदू हेट, जहाँ हमें सिखाया जाता है इंडियन हेट। बट आपके ये बुत तब टूटते हैं जब आप बाहर मुल्क जाते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, और आप बोलते हैं तो मेरे जैसा ही है, ये भी वही खा रहा है राजमा चावल जो मुझे भी पसंद है, राइट। आपकी बहुत सारे अनलर्निंग होती है, जो कि बहुत जरूरी है जिंदगी में। खैर, तो बर दुबई की मार्केट में आप कभी जाएं और वहां आप इंडियन शॉपकीपर्स के पास बैठे, जो साड़ियां बेचते हैं या जो दूसरी चीजें बेचते हैं, आप 500 साड़ी खुलवा लें, उसके माथे पे शिकन नहीं आएगा। वो चाय भी मंगाएगा, वो चना चाट भी मंगाएगा, वो आप जितनी साड़ियां खुलवानी खुलवाएं, ठीक है। इसके बाद आप जाएं किसी पाकिस्तानी स्टोर पे, 2 से तीसरा सूट निकलवा ले, मैडम जो पसंद है बता दे, ऐसे बात करते हैं। मैं रोलेक्स लेने गया, दुबई की बात है, वो कोई साहब है जो कि प्री लव्ड ये फैंसी वॉचेस में काम करते हैं, ठीक है। अब भाई तू मुझे बेच रहा है चीज, खैर मैंने ली नहीं, और मैं बताता हूँ क्यों। तुम मुझसे डील कर रहे हो एक चीज जो कि 30,000, 40,000, 50,000 दिरहम की है, ठीक है। अब जाहिर है जिस बंदे ने इतना पैसा खर्च करना है, तो वो जाहिर है जांच पड़ताल तो करेगा। अब मैंने बोला जी पहली वाली निकाल, ये निकाली, मुझे समझना, दूसरी तीसरी बोली, उसका मुंह बन गया कि यार आपको क्या चाहिए आप बताएं। मतलब मैं कोई कायदा थोड़ी याद करके आऊं, पूरा रोलेक्स का कैटलॉग या कार्टियर का कैटलॉग थोड़ी मेरे माथे में, मैं देखूंगा उसमें से पसंद करूंगा। दैट मोमेंट जहां उसने बोला ना, इस्लामाबाद के अंकल थे बड़े रूड किस्म के, मैंने बोला अरे काम करें आप अपने पास ही रखें, नहीं चाहिए, नहीं ली मैंने, मैं लेने के मूड में था। इनको कारोबार करना ही नहीं आता। सेम आप साउथ इंडियन, खासतौर पे किसी साउथ इंडियन, आप इतने चाय के ढाबों में जाते होंगे, आप उनका हुस्न इखलाक देखें। अबे इखलाक पे खड़ा है इस्लाम, हुस्न इखलाक पे खड़ा है, राइट। विच इज वाई आई कॉल साउथ इंडियन द बेस्ट मुस्लिम्स। मैंने इससे अच्छे मुस्लिम्स नहीं देखे यार, मतलब देर ऑलवेज स्माइलिंग, दे गिव यू सो मच कंफर्ट, दे गिव यू सो मच लव। माथे पे शिकन नहीं, 4 बार वेटर को यूं यूं बुलाओ, वो हंसता हुआ आएगा। दे लव व्हाट दे डू, दे आर ऑनेस्ट विद व्हाट दे आर डूइंग। सो आप कभी ट्राई कीजिएगा बरदुबई जाके साड़ी वाली दुकान पे, और आप निकलवाएं 50 साड़ियां, वो कभी भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, राइट। तो हमारे यहाँ क्या है, दुबई में एक कल्चर है कि आप ना गाड़ी से नहीं निकलते, बिकॉज गर्मी इतनी होती है। आप यूजुअली हॉन्क, और दुकान से कोई बंदा आता है, आप बोलते हो हाँ जी सिगरेट ला दे या दूध का पैकेट ला दे, वट एवर। मैं एक जगह गया शारजा में, मैं वहीं रहता था इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वो पाकिस्तानी स्टोर था, मैंने हॉन्क किया तो ओनर ने बोला अंदर आओ, ऐसे ना अंदर आओ, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। मैं भाड़ में जा, मैंने गाड़ी अगले उस पर गया, और वहाँ पे वो इंडियन था, मैंने हॉन्क किया, लिटरली उसके वर्कर सारे बिजी थे, वो अनलोडिंग कर रहे थे।
मालिक खुद उठ के आया, जी सर क्या चाहिए, मैंने डनियल स्विच चाहिए, फिर गया, फिर आया, डनियल स्विच दी, फिर मैंने 50 का नोट दिया, फिर गया, फिर आया, भाग भाग के। क्यों? क्योंकि भाई वो कहते हैं मैं यहाँ आराम करने आया हूँ। अगर मैं अपने बीवी बच्चे छोड़ के केरला में छोड़ के आया हूँ, मैं एसी में बैठने के लिए आया हूँ, मैं पैसा कमाने आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ। काम किया, सर्विस दी, कोई उसने नहीं। उसके बाद से मैं उसी दुकान का होके रह गया। कोशिश तो यही होती है यार पाकिस्तानी स्टोर पे जाएं, उसको सपोर्ट करें, मगर पाकिस्तानी को काम ही नहीं करना। तो ये हमें बस ये कह जी अल्लाह देगा, तू कौन होता है? अबे तो मुझे भी तो अल्लाह ने भेजा था, मैं क्या पुतिन ने भेजा था? मुझे अल्लाह ने ही तो भेजा था। लोगों को सीज कहते ना, सीज द डे या सीज द अपॉर्चुनिटी, ये नहीं आता, इखलाक ही नहीं है, मिजाज ही नहीं मिलते, आंखें सर पे चढ़ी हुई होती हैं, तभी तो फिर ये हाल है दुनिया में। सो ट्रीटिंग एनिमल्स वाली बात मैंने कर दी, क्लास और जेंडर वाली बात कर दी, औरतों का तो बेड़ा गर्क है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में औरत होना जुर्म है। वी आर जस्ट हेटफुल फॉर नो रीजन, वाई कांट वी लव। और क्या आपने बात की, हाँ, इज इट मेरली रिजल्ट ऑफ डिटेरियोरेटिंग फाइनेंशियल सिचुएशन? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तानी हर आदमी को 5 अरब डॉलर भी दे देना, वो जात में डीएनए में वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही रहेगा। वो 5 बिलियन डॉलर देख के भी दूसरे का 2 बिलियन नजर आ रहा होगा, ये क्यों है इसके पास? हमारे डीएनए ही खराब है, अब फॉर वट एवर रीजन क्या है, बट जनरली जो है ना, अब ये चीज मैंने चमकीला में भी नोट की थी कि चमकीला का इशू क्या था। ठीक है, वो गाने वाने जिस तरह के भी बनाता था, बट इट वॉज प्योरली जेलसी कि यार ये ऊपर क्यों है, ये मशहूर क्यों है, इसके रिकॉर्ड क्यों बिकते हैं, मारो इसको। और उसके पीछे क्लर्जी भी लगी हुई है, उसके पीछे ये भी लगे हुए, वो भी लगे हुए, और फिर आपने देखा। तो हमारे यहाँ भी ज़्यादा फर्क तो है नहीं। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान में कोई भी ज़रा सा ऊपर जाता है उसकी टांगे खींच लेते हैं। ऊपर क्यों जा रहा है, पैसा क्यों आ रहा है इसके पास, भेजो ज़रा दूसरी फलाने इदारे को भेजिए, इसको भेजो। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपकी गाड़ी का अफसोस हुआ, अब इसका कुछ कह नहीं सकते। ये फैक्ट है, इसीलिए पाकिस्तान में कहते हैं भाई पुरानी चीज़ें यूज़ करो, शायद इसलिए पुरानी चीज़ें महंगी भी हैं। तो ये सीन है। खैर, आई होप उसके बाद स्क्रैचेस ना लगे हों, और बड़ा लंबा जवाब हो गया, बट प्रेयर्स फॉर यू एंड प्रेयर्स फॉर एवरीवन। बुरी नज़र से बचें। अगेन, मुझे बड़ा एलियन कॉन्सेप्ट लगता है ये, मगर ये कि हमें इसलिए लगती है बिकॉज हमें नज़र लगाने वाले बहुत लोग हैं। सो या अल्लाह बचाए सबको, ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।